Hello students, welcome to the next lecture of some basic concept of chemistry. In this lecture, we are going to discuss about laws of chemical combinations. Now, these laws are basically the quantitative relationship in a chemical reactions between reactant and product. So these are based on the quantitative idea, the calculations of amount of substance formed or amount of substance reacted in a particular reaction. So ये जितने भी laws है ये सब के सब quantitative relationship बताते हैं. अब इसमें कौन से लॉज है प्लीज नोट डाउन इट देन वी कैन स्टार्ट ऑल द लॉज इन डिटेल द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द सेकंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट proportion the third is law of multiple proportion fourth law of reciprocal proportion fifth law of Gay-Lussac's law of combining volume and sixth will be the Avogadro law. So basically, we are going to discuss all these laws in detail. So let's begin a lecture with the first law, that is law of conservation of mass. Now, what is the law of conservation of mass? The law of conservation mass, you can say it's nothing but the law of conservation of energy. It is related to that because in universe, the energy cannot be created, cannot be destroyed, but it can be transformed from one form to the another. Similarly, when the reactant reacts and they give you a product, the amount of reactant and the amount of product form will be equivalent under a particular conditions. Okay, that is the experimental conditions. So Antonio Lavoisier is actually taken the compound of phosphorus. He did phosphorus, he did magnesium in the presence of air, and after that he come to a conclusions that the amount of reactant used in the reaction is equivalent to the amount of product formed. Means simply gives you an idea that mass when undergoes a reactant convert into a different form but of equivalent mass. That is called as law of conservation of mass. Like example may, if I take a hydrogen and react with an oxygen, it produces water, H2O. So the amount of H2O formed will be equivalent to the amount of H2 and O2 reacted. Okay. So the first law is a very simple law to understand. That is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Now what this law says? It says that the mass can neither be created, simple form mein, कि mass can neither be created nor destroyed. It's simple thing. If in a chemical reactions, you take the amount of a reactant, the amount of product form will be equivalent. For example, if I take a magnesium Mg in solid state, okay, I start heated it with oxygen. It results into the formation of magnesium oxide, that is MgO. Now suppose the magnesium which I took was 24 grams. Okay, I took magnesium as 24 gram. I took oxygen as 16 gram. So here the amount of reactants, if you combine them, that is 24 plus 16 gives you a 40 gram. So the amount of reactant is 40 gram. Now when you evaluate a product, okay, with under certain experimental conditions, the actual amount of product will be around 40 grams. So basically the जितना भी reactant था वो पूरा के पूरा किसमें convert हो गया product में under a experimental conditions. So that is why here we can say कि mass cannot be destroyed, cannot be created, it can be transformed from one form to the another in the equivalent amount. Okay, so you took 24 gram magnesium, 16 gram oxygen, you get 40 gram magnesium oxide, and the reactant was 40 gram. So mass is conserved here. I give you one more example. Suppose I take an example of a salt reaction.
AgNO3. Suppose silver nitrate, AgNO3 is silver nitrate. I take silver nitrate, I add NaCl to it. The amount of silver nitrate I added was 1.7 gram. And the amount of NaCl I added is 0.555 grams. Okay, this much I've added. So the total amount of reactant which I added in the mixture is 2.255 gram when you add them. Now, when they reacted, I found out Ag combines with Cl to form AgCl. So this is one of our product, and the second product is NaNO3. An experimental condition, it was found out that the amount of AgCl formed, the product, was 1.435 gram, and the amount of NaNO3 formed as a product was 0.82 gram. So when you add them, you get a value of 2.255 gram. So now you can see this is the amount of reactant you use in the reaction, and this is the amount of product formed in the reaction, exactly same. So we can say here the mass is what? Conserved. So this is the first law, that is law of conservation of mass. Now let's move on to the second law. Second law is also very simple to understand. I'll clear this up. The second law is the law of definite proportion. Or you can say a law of constant proportions. Now, what does it law indicate? Now, what does law says? This law says that a given compound always contain a given compound. It says a given compound. If you know, compound comes in the प्योर कैटेगरी. आपने पहले लेक्चर देखा होगा तो मैटर की प्योर कैटेगरी में आता है, जहां पर कंपाउंड इज मेड अप ऑफ different atoms in a fixed proportion. उसमें for example H2O is a compound, तो H2O में hydrogen 2 and oxygen 1. okay, so 2:1 का रेशियो that is fixed. तो ये लॉ उसी को ही एक्सप्लेन करता है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ये बोलता है कि तुम कोई भी कंपाउंड लो, यू टेक एनी कंपाउंड, यू abstract it naturally or you synthesize it in lab. तुम लैब में बनाओ, naturally लेके आओ, the amount, the ratio of the atoms in a compound will always remain same. They will always have that definite ratio in a compound. So okay, so the given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. Okay, for example, I'll talk about cupric carbonate. Cupric carbonate is Cu. Cupric is Cu, copper, plus 2 charge. Carbonate, CO3. CuCO3. So this is a formula of cupric carbonate. Okay. Now, when you talk about this carbonate formula, you have a copper, carbon, and oxygen present in it. So, if you analyze for CuCO3, cupric carbonate, if you analyze natural sample, अगर इसका natural sample लोगे CuCO3 का, तो percentage of copper was found to be 51.35. Percentage of oxygen was found to be 9.74. The percentage of carbon was found to be 38.91. And in this natural sample में, if you analyze a synthetic one, अगर तुमने इसको analyze किया synthetic sample को, so copper will be same 51.35%, oxygen will be 9.74%, and carbon will be 38.91%. So what does it indicate? It indicates that you take any compound from naturally or synthesize it in lab, the amount of element inside it will always remain constant. That is called as law of definite proportion. अब तुम कोई भी compound ले लो, उसके अंदर वो हमेशा fixed amount के atoms रहेंगे. It's very simple to understand.
That is why compounds comes under the category of pure substance. मैंने बताया था pure substance element होते हैं या compound होते हैं. चलो, let's move on to the next law. The next law is law of multiple proportions. थोड़ा ध्यान देना इसमें, अभी थोड़ा सा लॉस पे ध्यान देना. Now, what is the law of multiple proportion? First of all, law of multiple proportion is for two elements. याद रखो. What does it law says? It says that when two elements form more than one compound, elements, सपोज ए और बी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं समझने के लिए. दो एलिमेंट्स हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं. सपोज एलिमेंट आपका ए और बी है. ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड. तो व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड से ज्यादा ये मिक्स होके बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O2. तो दो डिफरेंट कंपाउंड बन गए. एलिमेंट दो ही है बट कंपाउंड दो अलग अलग बने. कार्बन विद ऑक्सीजन फॉर्म CO, carbon with oxygen forms CO2. So there are two elements, carbon, oxygen. One forms CO and one is forming CO2. So there are two compounds formed by two elements. So more than one compound, if two elements combine to form more than one compound, then the masses, okay, of second compound, suppose element B आपका second compound है, element B that combine with given mass, given मतलब fixed mass of A always in the ratio of small whole numbers. So now let us try to understand. Let's take an example and try to understand. Suppose हम लोग ने दो एलिमेंट सिलेक्ट किया, एलिमेंट C एंड एलिमेंट O. C और O आपस में मिलके बना सकते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये दोनों आपस में मिलके बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, C. तो यहाँ पर ये आपका एलिमेंट A हो गया, सपोज ये एलिमेंट B हो गया. तो एलिमेंट A को बराबर देखोगे तो दोनों जगह पे C प्रॉपर्ली, अगर मैं इनके एटॉमिक मासेस के टर्म में बात कर सकता हूँ. सपोज मैंने यहां पर कार्बन जो लिया है, कार्बन लिया है 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम. इनके एटॉमिक मास के टर्म में बात करता हूं. एटॉमिक मास को हम लोग अगर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, बट लेट्स टॉक अबाउट इन ग्राम्स राइट नाउ. वी विल अंडरस्टैंड दैट लेटर इन द मोल लेक्चर. तो 12 ग्राम कार्बन है, एटॉमिक मास का 12 होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है. ओके, यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं. यहाँ पर आपने 12 ग्राम कार्बन लिया, बट ऑक्सीजन कितना होगा, 2 into 16 दैट इज इक्वल टू 32. ट्वाइस है ना यहाँ पर, तो 32 ग्राम हो गया ये ऑक्सीजन. तो सी प्रॉपर्ली, दो एलिमेंट, व्हेन टू एलिमेंट C and O आर कंबाइनिंग टू फॉर्म टू डिफरेंट एलिमेंट्स CO and CO2, वेयर द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड. देखो बराबर से मैंने लिखा है यहाँ पर फिक्स्ड. तो मास ऑफ कार्बन देखो हम लोग ने क्या रखा है, फिक्स्ड. then the ratio of the other element in two compounds, देखो यहाँ पर लिखा है सिंपल, the masses of element B, masses of element B हमको कंपेयर करना है. सो देखो यहाँ पर B कौन है, ऑक्सीजन. यहाँ पर भी B कौन है, ऑक्सीजन. यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है, 16. यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है हमारा, 32. सो व्हेन दे कंबाइन द रेशियो इज 1:2. सो ये क्या बोल रहा है, द masses of element B always in the ratio of small whole numbers. See, they are always in the ratio of small whole numbers. So whenever two element combines, simple तरीके से इसको समझ लो what I am saying right now. Concentrate what I am saying. कि when two element combines to form more than one compound, where the second element combines with the fixed mass of the first element. तो बराबर देखो यहाँ पर first element का mass जो है ना वो fixed है. Then the ratio of the second element in the compounds,
तो मतलब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का रेशियो हम लोग ने इस ऑक्सीजन के साथ में निकाला, तो यहाँ पर इसका 16 है वैल्यू, यहाँ पर इसका वैल्यू 32 है। तो जब इनका रेशियो निकालोगे मतलब वो बी का जो एलिमेंट बी है, जो आपका भी यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया है, जब इसका आप रेशियो निकाल रहे हो दो कंपाउंड में, तो इट इज बेयरिंग अ सिंपल होल नंबर, दैट्स इट। तो सिंपल है, एक का मास फिक्स रहना चाहिए, तो दूसरे का मास जो होगा वो ऑटोमेटिकली रेशियो में सिंपल होल नंबर आएगा इन बोथ द कंपाउंड्स। ओके, so I am repeating one more time, listen to me carefully. When two elements combine to form more than one element, then the mass, the ratio of the second element combining with the fixed mass of the first element always bear a whole number, small whole number. Okay, तो जैसा ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट हम लोग ने लिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन combines to form H2O and they can also combine to form H2O2. Here the hydrogen is 2 gram, ऑक्सीजन सपोज यहाँ पर है 16 ग्राम, यस हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 2 into 16 32 ग्राम हो गया। तो देखो मास ऑफ वन एलिमेंट इज व्हाट, फिक्स्ड। तो अब दोनों का दूसरे एलिमेंट का अगर रेशियो निकालोगे 6:32, तो अगेन 1:2 आएगा। I'll give you one more example. For example, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हो गए, ये दोनों कंबाइन होके हमको एक नाइट्रिक ऑक्साइड बना के दे सकते हैं। ओके, और दूसरा ये हम लोगों को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना के दे सकते हैं। तो योर नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन सपोज 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन 16 into 30, 16 into 2, अगेन कितना हुआ 32। तो सी प्रॉपर्ली, here the nitrogen, the mass of one element is fixed, therefore the ratio of the masses of the other element always bear a simple whole number. Okay guys, so there's so many examples to understand the law of multiple proportion. Law of multiple proportion सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए होता है, ये याद रखना शॉर्टकट। दो एलिमेंट्स के लिए होता है जो एक से ज्यादा कंपाउंड बना दे, जिसमें एक का मास अपने फिक्स रखा और दूसरे का मास का रेशियो निकाला, तो वो बन गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि वो हमेशा सिंपल होल नंबर में आएगा। इट्स अ कंपाउंड बेसिकली। So I'll clear this up. Let's move on to the next law. The next law is, अभी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लॉ ऑफ, बट एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात याद रखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इज फॉर 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के लिए होते हैं, और 2 एलिमेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के लिए होते हैं। नाउ व्हाट इज दिस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन? रेसिप्रोकल प्रपोर्शन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या है, यहाँ पर ये है कि व्हेन इन द 3 एलिमेंट्स, हम लोग ने अगर 3 एलिमेंट्स लिया है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं लॉ लिख दूंगा यहाँ पर। सपोज मैंने 3 एलिमेंट सिलेक्ट किए, एक है हाइड्रोजन, एक है सल्फर, और दूसरा है ऑक्सीजन। देखो 3 एलिमेंट हो गए, हाइड्रोजन, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। When we combine hydrogen and sulfur, we can make a compound H2S. When we combine hydrogen and oxygen, we can make a compound H2O भी आप बना सकते हो, या H2O2 भी बना सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या वाटर बना सकते हो। ओके, यहाँ पर अगर मैं मास इसके बारे में बात करूं, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 into 1 2। सल्फर का मास होता है 32, सो 32 एक ही सल्फर है, तो 32। 2:32 मतलब 1:, क्या हो गया 16। यहाँ पर अगर मैंने H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, तो हाइड्रोजन विल बी 2, क्योंकि उसका मास 1 होता है, तो 2 टाइम्स है, तो 2 into 1। ऑक्सीजन का 16 है, तो इसका रेशियो आएगा 1:, सॉरी हाँ 1:8। अगर यहाँ पर हम लोग ने हाइड्रोजन का निकाला, तो इट इज अगेन 2:32, दैट इज 1:16। ओके, अच्छा, सल्फर और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बना सकते हैं? वो बना सकते हैं SO2। समझो SO2 गैस बना, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन 16, 16 into 2 is again 32, that is how much 1:1। सी प्रॉपरली है, बराबर देखो मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ इसके अंदर, what is your basically। so
There are total how many elements here? If you see properly, there are total 3 elements: hydrogen, sulfur, and oxygen. If you see properly, sulfur is combining with 2 grams of hydrogen. Oxygen is also combining with 2 grams of hydrogen. मतलब the mass of one element is fixed. तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास रखा है वो क्या रखा है हमने? फिक्स्ड रखा है. ओके, मास ऑफ is fixed. Okay, here in H2S sulfur is 32. Here in H2O oxygen is 16. In H2O2 oxygen is 32. तो अगर मैं ये सल्फर जिसका मास 32 है उसको सिलेक्ट करूं और इस ऑक्सीजन को सिलेक्ट करूं जिसका मास 16 है वाटर में, तो इनका रेशियो आता है 32:16. दैट विल बी 2:1 या 1:2. अच्छा, अगर मैंने यहां से सल्फर सिलेक्ट किया तो उसका मास कितना आ रहा है? 32. और अगर H2O2 से ऑक्सीजन सिलेक्ट किया तो उसका मास कितना आ रहा है? 32. दैट इज नथिंग बट अगेन व्हाट, अगर रेशियो निकालूं तो 1:1 होता है इसका रेशियो. सी प्रॉपर्ली. और अगर सल्फर और ऑक्सीजन को आपने सेपरेटली कंबाइन किया तो इनका रेशियो क्या आ रहा है? 1:1. तो मुझे क्या बताना है इसमें? मुझे ये बताना है when two elements, sulfur and oxygen, keep this in mind what I'm saying right now, when two elements, sulfur and oxygen, combining with the fixed mass of third element, okay, the third element was hydrogen, uska mass fixed था. Simple है. When two elements, मैंने example रखा sulfur and oxygen, is combining with the fixed mass of the third element that is hydrogen, और हम लोग ने हाइड्रोजन का 2 ग्राम लिया था, फिक्स्ड मास लिया था. Okay, in that if you check the ratio of sulfur and oxygen in these two compound different will be a simple whole number or exactly same, will be a simple whole number or exactly same to the ratio when sulfur and oxygen, the two element combine with each other. तो जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइन होते हैं, तीसरे का मास फिक्स रखा है हम लोगों ने, तो वहां पर जब दो एलिमेंट का आप रेशियो निकालोगे और जब दो एलिमेंट का रेशियो निकालोगे जब वो आपस में कंबाइन हो रहे, तो या तो वो एक्जैक्टली सेम होगा, तो देखो 1:1, यहाँ पर 1:1 आ रहा है ऊपर, यहाँ पर भी 1:1 आ रहा है, तो एक्जैक्टली सेम होगा. या तो फिर देखो यहाँ पर 1:2 और यहाँ पर 1:1 आ रहा है, इट विल बेयर अ सिंपल होल नंबर. So that is called as law of reciprocal proportion. So I'll write down here for the law of reciprocal proportion. Okay, when two different element, देखो मैं एग्जांपल में आपको ले दूंगा. यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सल्फर एंड व्हाट, ऑक्सीजन. ठीक है, सिंपल है. कंबाइन सेपरेटली, कंबाइन सेपरेटली विथ द सेम or you can say fixed or same mass, fixed mass of थर्ड एलिमेंट. हम लोग ने थर्ड एलिमेंट क्या सिलेक्ट किया था? पर हाइड्रोजन, जिसका मास फिक्स रखा था. the ratio the ratio which they do so, मतलब जब वो बना रहे थे H2S या H2O या H2O2 और उसमें हमने सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, सो द रेशियो which they do so will be same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other.
तो देखो द रेशो विच दे डू सो, मतलब ये जब थर्ड एलिमेंट से कंबाइन हुए तब इनके पास दो रेशो आया था। अगर ये हम सिर्फ अगर इसको पकड़ेंगे वाटर को और H2S को, तो सल्फर ऑक्सीजन का रेशो आया था 1:2, और यहाँ पर रेशो आ रहा है 1:1। सो यहाँ पर देखो रेशो आ रहा है 1:2। जब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, H2S और H2O की, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन और सल्फर का निकाल रहे थे, और 1:1 आया था, 1:1 आया था जब हम लोग बात कर रहे थे H2S, जिसमें सल्फर का रेशो हमने निकाला H2O2 पेरोक्साइड के ऑक्सीजन के रेशो से। सो वो रेशो क्या था, 1:2 था और 1:1 था। और जब वो आपस में कंबाइन हुए, ओके, जो आपस में कंबाइन हुए तब उनका रेशो क्या आया, जब वो SO2 बने, जब उनका रेशो आया 1:1। तो ये क्या बताता है, ये हमको ये बता रहा है कि when these two elements sulfur and oxygen when they are combining with the third element, keeping the third element with a fixed mass, तो उनमें जो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो था और जो रेशो जब वो आपस में कंबाइन हो गए, या तो वो सेम होगा, जैसा 1:1 हमको मिला वो सेम होगा, या तो कोई सिंपल मल्टीपल रेशो होगा। तो 1:2 एक सिंपल मल्टीपल रेशो है जो हम लोगों को H2S और H2O में मिला। So this is the law of reciprocal proportion, where two elements combine with the fixed mass of the third element. Listen to me carefully. When two element combines with the fixed mass of the third element to form compounds, then the ratio of those two elements over there in which they do so will be exactly same or a simple whole number ratio when it is compared to the ratio when these two elements are combined with each other. Okay, so जब यहां पर अपने सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो निकाला है, जब वो हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे थे, वो या तो एग्जैक्टली सेम हो गए या सिंपल होल नंबर हो गए जब सल्फर ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉर थ्री एलिमेंट्स। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ। द नेक्स्ट लॉ इज Gay-Lussac's law, the name of the scientist. Gay-Lussac's law of gaseous volume, मतलब we are dealing with gaseous substance, okay, gaseous volume, gaseous reactant and product. So ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है when gases combine, जब गैस आपस में कंबाइन होते हैं, सिंपल है, when gases combine or are produced, मतलब जब वो रिएक्ट करेंगे या तो वो फॉर्म होंगे आफ्टर रिएक्शन, प्रोड्यूस in a chemical reactions, they do so in simple ratio by volume. Simple ratio by volume, provided, ये सबसे important part है, provided all gases in mixture are at same temperature and pressure, because गैस पे टेम्परेचर प्रेशर का बहुत इफेक्ट होता है। ओके, हीटिंग से वो एक्सपांड होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, प्रेशर अप्लाई करने से वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ हाइड्रोजन गैस, सपोज हम लोग ने हाइड्रोजन लिया, ओके, हाइड्रोजन गैस लिया है, ऑक्सीजन गैस से कंबाइन किया, सो वी विल गेट अ वाटर। ठीक है, हम लोग H2O मिला, वेपर स्टेट में मिला, तो वाटर वेपर हो गया। सपोज ये हम लोगों ने 100 ml लिया है, ये 50 ml लिया है, तो ये हमको मिलेगा अराउंड 100 ml। मतलब बेसिकली इफ यू सी प्रॉपरली, तो इनका अगर रेशो निकाल रहा हूं मैं, तो 1:5:1 आ रहा है। अच्छा, इन सबको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 200 ml, ये हो जाएगा 500 ml, ये हो जाएगा 200 ml। ओके, सो
इफ यू सी प्रॉपरली कि इनका अगर मैं रेशो निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और वाटर का, वो हमेशा हमको एक सिंपल होल नंबर लेके देगा. सिंपल होल नंबर, ऑलवेज इट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशो. ओके गाइस, सो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी दिस शुड बी 2 5 100 ml होगा. तो जब आप इसका रेशो निकाल रहे हो, सो ये 200:100:200 हो गया, मतलब 2:1:2 हो गया. इट विल ऑलवेज बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशो. तो यहाँ पर सिंपल समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो भी गैस आप कंबाइन, whenever you combine a gas, the amount, the volume of the gas and the volume of the gaseous reactant and product always bear a simple whole number. That's it. उसका हमेशा एक वैल्यू सिंपल होल नंबर ही होगा उनके रेशो का. सपोज यू टुक अ नाइट्रोजन गैस, हम लोग ने नाइट्रोजन गैस लिया. सो नाइट्रोजन गैस मुझे कितना लग रहा है अमोनिया को बनाने में. सो इफ आई टेक अ नाइट्रोजन गैस हियर एंड राइट डाउन, I'll clear this up. Suppose if I take a nitrogen gas, I combine with this hydrogen gas, I heat it in presence of catalyst, I will get a ammonia, NH3 gas, ammonia gas. So अगर मैं ये एनालाइज करूँ ना, तो प्रैक्टिकली सपोज इसको मैंने लिया है 100 ml, ठीक है. इसको मैंने लिया है 300 ml विद कैलकुलेशंस एंड ऑल. तो मुझे 200 ml अमोनिया मिलेगा. मतलब इफ आई टेक दिस नाइट्रोजन एस 300 ml एंड हाइड्रोजन एस 300 ml, तो अमोनिया मुझे 200 ml मिलेगा. मतलब ये बेसिकली हो गया, अगर सबको मैं 100 से डिवाइड कर दूं, मैं लिख सकता हूँ कि ये हो गया 1 वॉल्यूम, दिस इज नथिंग बट 3 वॉल्यूम एंड दिस इज नथिंग बट 2 वॉल्यूम. सबको 100 से डिवाइड किया, तो मतलब इनका जो रेशियो आ रहा है 1:3:2 आ रहा है. ऑलवेज बी अ सिंपल होल नंबर इफ द टेम्परेचर प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट. अंडर अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में इनका हमेशा जो वैल्यू होगा इट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो. अब तुम ml में लो, लीटर में लो, वो हमेशा एक होल नंबर आपको बना के देगा इसके अंदर. Okay, so that is the Gay-Lussac's law of combining volume. Very simple to understand कि when you combine a gas with each other, gas combine होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनाएगा, तो गैस और प्रोडक्ट gaseous reactant और प्रोडक्ट का आप रेशियो निकालोगे, तो they will always be in a simple whole number. That is called as Gay-Lussac's law of combining volume of gases. I'll clear this up. Let's move to the last law. The last law is Avogadro law. Now, what is this Avogadro law? It says that equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. बहुत सिंपल है समझना इसको. इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मतलब दो गैसेस जिनका वॉल्यूम अगर सेम है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर उनका वॉल्यूम सेम होगा तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी एग्जैक्टली सेम होंगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो लॉ. Okay, so it's very simple to understand कि equal volume of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. मतलब हम लोग ने दो गैस, समझो दो सिलेंडर लिया है, one has a oxygen gas, one has a nitrogen gas, both is 1 liter, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है. समझो नाइट्रोजन गैस हैज x मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो फिर ऑक्सीजन में भी x मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा. सो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सिंपल याद रखना, number of molecules. Okay, so volume is directly proportional to number of molecules. But if you remember, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक इक्वेशन दिया था, if you remember that, कि PV is equal to nRT, where V stands for volume and N stands for mole. Okay, the larger unit. So मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि
अंडर सिमिलर कंडीशन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, आर तो कांस्टेंट ही है, वी कैन राइट डाउन के वॉल्यूम आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये भी याद रखने का, ये भी याद रखने का। सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। So basically, equal volume of all gases at constant temperature and pressure has same number of molecules. Okay, that is the Avogadro law. Okay, now let's talk about its application of Avogadro law and Gay-Lussac's law. Now remember, there is a term called as atomicity. I'll clear this up. Remember this word. Atomicity. Atomicity का simple meaning क्या होता है? It means number of atoms in a molecule. For example, if you ask me hydrogen, I say hydrogen has 2 hydrogen atoms. So its atomicity will be 2. Simple. If you say ozone, O3, its atomicity will be 3. It has 3 atoms in it. Okay, mix it. Suppose if you say H2O, so in a single molecule of H2O, there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So total atomicity is 3, out of which 2 is hydrogen and 1 is what? Oxygen. So these are the atomicity of the पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कितने एटम्स उनमें प्रेजेंट है और कौन से टाइप कितनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। अगर मैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले लूं, फॉर एग्जांपल इफ आई से H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? इट हैज 3 हाइड्रोजन प्लस इट हैज 1 फॉस्फोरस प्लस इट हैज 4 ऑक्सीजन, so its atomicity in total will be 3 plus 1 4 plus 4, that will be how much? 8. So atomicity is basically total number of atoms in a molecule. Plus also you'll come to know how many atoms are present and which type of atoms are present in how much amount. That is atomicity. So atomicity कहाँ से आई? Atomicity हम लोगों को मिली है ये दो लॉ के एप्लीकेशन से। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मैंने हाइड्रोजन गैस लिया है, ठीक है, गैस मैंने लिया है 1 लीटर की गैस ली मैंने, और उसमें मैंने क्लोरीन गैस डाल दिया, ये भी मैंने 1 लीटर डाला, मुझे हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा ऑब्वियसली, जिसको आप HCl बोलते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगा। जब मैंने इसका अमाउंट फाउंड किया, इट इज ऑन 2 लीटर्स। सो बेसिकली अगर मैं गे-लुसैक्स लॉ की बात करूं तो इनके रेशियो क्या हो गए? 1:1:2। दे आर कंबाइनिंग विद द सेम वॉल्यूम। सो ये हो गया 1 वॉल्यूम, देन द सिंपल होल नंबर रेशियो देखो 1 वॉल्यूम, ये हो गया 2 वॉल्यूम, ठीक है। Now, according to Avogadro law, equal volume of all gases have same number of molecules. तो अगर मैं ये बोलता हूं कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन में n मॉलिक्यूल्स है, तो आप बोलोगे सर अगर इसमें n मॉलिक्यूल्स है मतलब डेफिनेटली इसमें भी n मॉलिक्यूल होगा क्योंकि ये 1 वॉल्यूम है, और ये 2 वॉल्यूम है तो इसमें 2n मॉलिक्यूल होगा, इनसे ज्यादा ऑब्वियस बात है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ दिस इज n molecule, so obviously वो 2 वॉल्यूम है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इट विल बी ऑफ व्हाट 2n मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ सपोज मैंने n से इनको डिवाइड कर दिया, अगर n से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 मॉलिक्यूल, n मॉलिक्यूल से ये भी कितना बन जाएगा? 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि n से मैंने डिवाइड कर दिया। ये कितना बन जाएगा? दिस बिकम्स व्हाट 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा हाफ मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएगा? हाफ मॉलिक्यूल, एंड दिस विल बी व्हाट 1 मॉलिक्यूल, 2 से डिवाइड किया। नाउ इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज मैंने हाइड्रोजन को कंसीडर किया, अगर मैं हाइड्रोजन को सपोज कंसीडर करता हूं मोनो एटॉमिक मतलब हाइड्रोजन दुनिया में सिंगल एटम के फॉर्म में घूम रहा है H, तो सपोज अगर मैंने यहां पर ये बोला कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में एक ही एटम होता है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अंदर एक ही ऑक्सीजन होता है, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू H मतलब आप एक एटम को डिवाइड कर रहे हो, आई एम डिवाइडिंग एन एटम, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एक ही एटम के फॉर्म में है और HCl बनाने के लिए उसका सिर्फ हाफ चाहिए, तो आप मुझे ये
मैं आपको ये बता रहा हूं कि एटम को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो वो गलत है, बिकॉज एटम का नाम कहां से आया था? इट सेज दैट एटम्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इनडिविजिबल। क्योंकि वो टाइम पे ये जो आइडिया था दैट एटम्स आर इनडिविजिबल, ये डेल्टन ने भी माना था। इसके पहले भी ये जो डेमोक्रिटस ने जो क्लेम किया था कि यस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज एन एटम व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, देयरफॉर एटॉमिस्ट जो नाम रखा गया वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को सिंगल एटम कंसिडर करूंगा और हाफ से इसको मतलब डिवाइड करूंगा 2 से, तो आप बोलोगे सर मैं एटम को हाफ कर रहा हूं, तो एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, वो नहीं कर सकते। तो ये अजम्पशन हमारा, कंसिडरिंग हाइड्रोजन एज मोनो एटॉमिक फॉर्म, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन अब खुद सोचो, अगर मैंने हाइड्रोजन को मोनो एटॉमिक की जगह पे कंसिडर कर दिया कि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक है मतलब हाफ इंटू H2 इज द सिंगल H एटम। O2 डाई एटॉमिक है, तो हाफ इंटू O2 इज सिंगल O एटम। सो व्हेन, सॉरी, made a mistake here, it should be chlorine. Okay, तो अगर मैं क्लोरीन को डायटोमिक यहां करूंगा तो यहाँ सिंगल एटम ऑफ क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सिंगल एटम ऑफ क्लोरीन। ये सही बैठेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको क्लोरीन को मोनो एटॉमिक लिया होता तो आप बोलते सर क्लोरीन को आप हाफ कैसा कर सकते हो, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तो आप सिंगल एटम नहीं, आप उसको आप डायटोमिक अगर कंसीडर कर रहे हो तो यस, व्हेन यू डिवाइड दिस बाय 2 यू विल गेट अ वन सिंगल क्लोरीन। और आपको सबको पता है कि जो HCl बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? HCl व्हिच हैज वन हाइड्रोजन एटम इन इट एंड वन क्लोरीन एटम। तो ये अजम्पशन हमारा फिक्स बैठ रहा है कि हाइड्रोजन शुड बी diatomic and even chlorine should be what? Diatomic gases. So basically हमने यहाँ पर atomicity find कर ली in molecules की using Gay-Lussac's law and Avogadro law. You have to understand this कि अगर मैं यहाँ पर सिंगल एटम कंसिडर करता हाइड्रोजन का या सिंगल एटम क्लोरीन का कंसिडर करता, तो आप मुझे बोलते सर सिंगल एटम को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो? एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो ही तो उसका नाम रखा गया था वो टाइम पे, दैट इज एटॉमिस्ट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो ये अजम्पशन हमारा वो टाइम पे रॉन्ग हो जाता कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो अगर मैंने एटम को डायटोमिक लेके चला है, मतलब हाइड्रोजन दो एटम के साथ में घूम रहा है, तो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो एक एटम आ रहा है इधर पे। सिमिलरली क्लोरीन अगर डायटोमिक है, दो एटम के फॉर्म में वो दुनिया में रहते हैं, और उसको हाफ करूंगा तो एक एटम क्लोरीन का आ रहा है, जो बराबर अजम्पशन में कंप्लीट बैठ रहा है, where you having one hydrogen atom and one chlorine combining with each other. Okay, so from there we came to know what is the atomicity, and you keep in mind कि atomicity होता क्या है? It is a number of atom present in a molecule. So this was all about different laws of chemical combinations. इसके बाद जो next lecture होगा that will be on mole concept. Okay guys, take care, bye.